Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Lecture number 7 of General Science for class 8, and this is the last part of chapter Chemical Reactions. In our previous lecture, we have discussed how to give the chemical formula to compound. We have practiced the chemical formulas of compound, and we have discussed the types of reaction, in which we have discussed 4 types: synthesis reaction, decomposition reaction, displacement reaction, and double displacement reaction. In today's lecture, we will discuss redox reactions, the 5th type of reaction, redox reaction. And the last topic for today is how to give the balancing of equations, how to do the balancing of equations. So let's begin today's lecture with the redox reaction. Redox reactions. What are redox reactions? They are comprising of 2 types of reaction: oxidation reaction and reduction reaction. रिडॉक्स रिएक्शन क्या होते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन की 2 टाइप्स हैं जिन्हें कलेक्टिवली रिडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है. वन इज कॉल्ड द ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड द अदर टाइप इज कॉल्ड द रिडक्शन रिएक्शन. Oxidation reaction is simply means that the reaction in which addition of oxygen occur. In other terms, it is also called as the reaction in which loss of electrons observed. Whereas reduction reactions are those reaction in which removal of oxygen occur, and in other terms it is called as the reaction in which gain of electrons observed. When oxidation and reduction reaction occurs simultaneously, it is called as redox reaction. Now we will see one by one what happens in the oxidation reaction and what is the reduction reaction and how do they call redox reaction. Oxidation reaction. It is a type of chemical reaction in which addition of oxygen takes place in one of the reactant, or in these type of reaction loss of electron takes place. ऐसे chemical reaction जिनके अंदर आप addition of oxygen देखें. एडिशन ऑफ ऑक्सीजन का मतलब ऑक्सीजन का ऐड होना किसी भी रिएक्टेंट के साथ. सबसे पहले जब भी हम कोई रिएक्शन लिखते हैं तो वी आर रिप्रेजेंटिंग द रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ केमिकल इक्वेशन, और केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेने वाले एलिमेंट्स को रिएक्टेंट कहते हैं, और उनके कॉम्बिनेशन से जो चीज़ प्रोड्यूस होती है उसे प्रोडक्ट कहते हैं. तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन का होना रिएक्टेंट साइड पर किसी भी रिएक्टेंट के अंदर ऑक्सीडेशन कहलाता है. इसी तरह इन रिएक्शंस को ऐसे रिएक्शन भी कहा जाता है जिनमें आपको इलेक्ट्रॉन्स लूज होते हुए नजर आएँ. You will understand this phenomena, this process or this reaction clearly with the help of example. Example number 1, you can see a reaction in which carbon is burned in the presence of oxygen. Carbon का symbol C है. For burning we use the symbol O2 for oxygen. It produces carbon dioxide. Now you can see it is a simple burning process. And remember, all the burning processes are oxidation reactions. कार्बन के अंदर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है. अगर आप देखें तो रिएक्टेंट साइड पर कार्बन के साथ ऑक्सीजन कंबाइन हो रहा है या ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहा है. ऐसे तमाम रिएक्शंस जिनमें रिएक्टेंट्स में ऑक्सीजन ऐड हो रहा हो उन्हें ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहा जाता है. फ्रॉम दिस एग्जाम्पल इट इज़ very clear. It is addition of oxygen. One more example, reaction of hydrogen with oxygen. When the molecule of hydrogen combines with the molecule of oxygen gives us water. You can see in this example as well, oxygen is added to hydrogen and it is making a compound water. In this example also you can see the addition of oxygen to one of the reactant. Whenever in any reaction oxygen is added, these type of reactions are called as oxidation reactions. Second type of reaction, reduction reaction. It is a type of chemical reaction in which oxygen is removed, or in this type of reaction gain of electron occur. आपने प्रीवियस रिएक्शन में देखा विच इज़ कॉल्ड ऑक्सीडेशन, ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा हो.
और इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन अगर आप रिडक्शन को कंपेयर करें तो इसके अंदर ऑक्सीजन रिमूव हो रहा होता है, और ऐसे तमाम रिएक्शंस जिनमें इलेक्ट्रॉन्स गेन हो रहे हो उन्हें रिडक्शन कहा जाता है। सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू, जो सेकंड एग्जांपल का तरीका, सेकंड जो इसकी डेफिनेशन का पॉइंट है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इनको हम फर्दर एग्जांपल्स में देखेंगे। इस वक्त हम रिडक्शन को भी ऑक्सीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि ऑक्सीडेशन के अंदर इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ऐड हो रहा था, अब रिडक्शन टाइप के रिएक्शंस में ऑक्सीजन का रिमूवल होना। सो सी दिस process or reaction with the help of example. Example number 1. There is a metallic oxide, calcium oxide. It is reacting with hydrogen. It is combining with hydrogen and produces calcium and water. Now you can see इस एग्जाम्पल के अंदर हाइड्रोजन ने कैल्शियम ऑक्साइड से, कैल्शियम ऑक्साइड के कंपाउंड से ऑक्सीजन को रिमूव किया है और कैल्शियम जो है वो सेपरेट हो गया है। हाइड्रोजन का यहाँ पर मौजूद होना शो करता है कि हाइड्रोजन एक ऐसा रिड्यूसिंग एजेंट है, यानी वो एलिमेंट जो कंपाउंड से ऑक्सीजन को रिमूव कर दे वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है, क्योंकि वो कंपाउंड से तो ऑक्सीजन को रिमूव कर देता है और ख़ुद इटसेल्फ अपने लिए अगर आप उसकी कंडीशन देखें तो वो ख़ुद ऑक्सीडाइज हो जाता है क्योंकि उसके अपने अंदर ऑक्सीजन ऐड हो जाता है। यू कैन सी अगेन दिस एग्जाम्पल, कैल्शियम ऑक्साइड का एक कंपाउंड है, जब उससे आपने हाइड्रोजन को पास किया तो उसने कैल्शियम को ऑक्सीजन से सेपरेट कर दिया और ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ अटैच हो गया, कंबाइन हो गया। तो द फर्स्ट थिंग इज हाइड्रोजन हैज़ रिमूव्ड ऑक्सीजन from the calcium. It reduces oxygen, so this is called as the removal of oxygen, and itself it oxidized because हाइड्रोजन अब हाइड्रोजन से वाटर में कन्वर्ट हो गया है, यानी वो खुद ऑक्सीडाइज्ड हो गया है और उसने एक मेटालिक ऑक्साइड से उसका ऑक्सीजन जो है वो रिमूव कर दिया है। इस तरह के रिएक्शंस को रिडक्शन रिएक्शन कहा जाता है। वन मोर एग्जाम्पल, कॉपर ऑक्साइड इज रिएक्टिंग विद हाइड्रोजन। कॉपर ऑक्साइड या और बहुत सारे मेटालिक ऑक्साइड्स को उनके ओर से, ओर का मतलब ये होता है कि बेटा जब हम मिनरल्स को, मेटल्स को एक्सट्रैक्ट आउट करते हैं ज़मीन से तो ये अपने ओर्स के साथ होते हैं, यानी कि ये ऑक्साइड की फॉर्म में होते हैं। फिर जब हम इनको मुख्तलिफ गैसेस पास करते हैं, लाइक कॉपर ऑक्साइड को ट्रीट किया जाता है हाइड्रोजन गैस से ताकि उसके अंदर से उसका ऑक्साइड रिमूव कर दिया जाए। दिस इज़ अ रिडक्शन टेक्निक, दिस इज़ अ रिडक्शन रिएक्शन। Hydrogen when passed to the copper oxide, it gives us copper metal as well as producing water. In this case again you can see hydrogen is a reducing agent, reduces oxygen from the compound and itself oxidized and forming water. So all those reactions in which any element reduces oxygen from the compound, they are called as the reducing agents and the reaction is called reduction reaction. In these type of reaction you can easily see that the removal of oxygen occur. रिडॉक्स रिएक्शन की डेफिनेशन बताते वक्त मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होते हैं। यहाँ पर इस एग्जाम्पल में आप रिडक्शन को देख सकते हैं कि रिडक्शन अलोन पॉसिबल नहीं है। कोई भी गैस अगर किसी मेटालिक कंपाउंड के साथ रिएक्ट करती है, यानी उस पर्टिकुलर कंपाउंड को उसके ऑक्साइड से सेपरेट करने के लिए यूटिलाइज होती है, जहाँ जैसे कि हाइड्रोजन गैस यूटिलाइज हुई है और इसने मेटालिक ऑक्साइड को उसके ओर से सेपरेट आउट किया है, तो वो गैस या वो एलिमेंट खुद रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है, उस मेटल को उसके ऑक्साइड से अलग कर देता है, ऑक्सीजन को रिमूव कर देता है। लेकिन अगर आप उस खुद एलिमेंट की यहाँ पर कंडीशन देखें तो इटसेल्फ वो खुद ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, क्योंकि आप देखेंगे कि ऑक्सीजन को वहाँ से रिमूव करने के बाद प्रोडक्ट साइड में वो खुद ऑक्सीडाइज्ड हो गया क्योंकि ऑक्सीजन उसके अंदर ऐड हो गया। तो यहाँ आपको ये दोनों चीज़ें क्लियरली नज़र आएंगी कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आपको नज़र आएगा। रिडक्शन अलोन जो है वो आपको इस एग्जाम्पल में नज़र नहीं आ रहा। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होना, दैट इज़ वाई द रिएक्शंस नेचर आर कॉल्ड एज द रिडक्शन रिएक्शन। अब हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को एक साथ इन टर्म्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन देखेंगे, यानी कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एज वेल एज रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एट अ टाइम। दैट इज़ वाई द रिएक्शन इज टर्म्ड एज रिडॉक्स रिएक्शन। इज
आयरन ऑक्साइड का अपने ऑक्साइड से रिमूव होकर और आपका आयरन को हासिल करना। फॉर दिस पर्पज़ वी यूटिलाइज कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। आयरन ऑक्साइड का फॉर्मूला है Fe2O3। जब इससे कार्बन मोनोऑक्साइड को पास किया जाता है, द फॉर्मूला इज CO। इट प्रोड्यूसेस आयरन बिकॉज आयरन अपने ओर से सेपरेट आउट हो गया, एंड वी आर गेटिंग हेयर कार्बन डाइऑक्साइड। अब आप इस एग्जाम्पल में बहुत क्लियरली देख सकते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो एक रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड ने इस रिएक्शन में आयरन ऑक्साइड से उसका ऑक्सीजन रिमूव कर दिया और आयरन आपने हासिल किया, उसके ओर से आयरन को सेपरेट आउट कर दिया। कार्बन मोनोऑक्साइड एक रिड्यूसिंग एजेंट है, उसने आयरन से ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया, लेकिन वो खुद ऑक्सीडाइज्ड हो गया क्योंकि उसके अंदर एडिशन हो गया ऑक्सीजन का, जिसकी वजह से वो बजाय अब कार्बन मोनोऑक्साइड के कन्वर्ट हो गया है कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। तो ये चीज़ आपको इस एग्जाम्पल से और क्लियर हो गई कि कार्बन मोनोऑक्साइड इज़ अ रिड्यूसिंग एजेंट, रिमूविंग ऑक्सीजन फ्रॉम द मेटेलिक ऑक्साइड एंड इट सेल्फ ऑक्सीडाइज्ड। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगा इसके साथ, तो ये बना देता है कार्बन डाइऑक्साइड। सो दिस इज एन एग्जाम्पल विच शोज द रिडॉक्स रिएक्शन एट अ टाइम, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द कंपाउंड एज वेल एज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू वन ऑफ द रिएक्टेंट। रिडॉक्स रिएक्शन, नाउ द टर्म इज यूज्ड रिडॉक्स बिकॉज अब हम देखेंगे कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का होना। Addition of oxygen or removal of oxygen is quite clear to you. Now we are taking the example by which we can see how the loss of electron and gain of electron occur, and it is collectively called redox reaction. In this example, calcium is reacting with oxygen. अगर आप देखें तो कैल्शियम के ऊपर एक ज़ीरो लिखा हुआ है, बिल्कुल इसी तरह ऑक्सीजन के ऊपर ज़ीरो की प्रेजेंस क्या शो करती है। दे आर नाउ इन अ फ्री स्टेट, यानी कैल्शियम इस वक्त किसी के साथ कंबाइन नहीं हो रहा, अपनी एक सेपरेट फ्री स्टेट के अंदर है। तो इसकी पोजीशन क्या है, इसके ऊपर ज़ीरो लगा हुआ है, यानी इट इज़ इन इट्स फ्री फॉर्म, देयर इज़ नो चार्ज ऑन कैल्शियम। सिमिलरली ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल है O2, वो क्योंकि अपनी फ्री स्टेट के अंदर मौजूद है तो उसके ऊपर ज़ीरो शो कर रहा है कि इट इज़ इन अ फ्री फॉर्म, देयर इज़ नो चार्ज ऑन इट। बट व्हेन दे बोथ कंबाइन, एंड फॉर द कॉम्बिनेशन हियर वी आर इंट्रोड्यूसिंग द साइन ऑफ प्लस। लेकिन जब ये दोनों एलिमेंट्स कंबाइन होंगे, दे आर प्रोड्यूसिंग अ कंपाउंड कैल्शियम ऑक्साइड। बिफोर द रिएक्शन ये दोनों अपनी फ्री फॉर्म में थे, कोई रिएक्शन में हिस्सा नहीं ले रहे थे, तो इनके ऊपर ज़ीरो की प्रेजेंस शो कर रही थी कि दे आर इन अ न्यूट्रल फॉर्म, क्योंकि एक एलिमेंट, एक एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। लेकिन जब ये दोनों कंबाइन हुए तो अब इनके ऊपर आप इलेक्ट्रिकल चार्ज देखेंगे। कैल्शियम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर 20 इन द वैलेंस शेल हैविंग 2 electrons. It means that calcium losing 2 electrons. That's why calcium having the charge +2, whereas number of electrons in oxygen are 8 and the valence shell have requirement of 2 electrons, so the charge on oxygen is -2. It means that oxygen अपने कैल्शियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। इस तरह से कंपाउंड कैल्शियम ऑक्साइड फॉर्म होता है। नाउ इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हम इस इक्वेशन को देखेंगे। कैल्शियम फ्री फॉर्म से ऐसी स्टेट में आ गया जहाँ पर वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है आफ्टर टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन। वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, जबकि अगर आप ऑक्सीजन को देखें तो वो इस रिएक्शन में 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तब जाके कैल्शियम ऑक्साइड का बनना अमल में आया है। इट मीन्स दैट कैल्शियम इज showing the oxidation state because it is losing electron, whereas oxygen shows the gain of electron. It means it shows the reduction reaction. Now you can easily understand what is the redox reaction in terms of loss of electron and gain of electron. एक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना और दूसरे का गेन करना, ये चीज़ redox reaction कहलाती है। Another example for the redox reaction, sodium.
Sodium in its free form without taking part in any reaction, it is representing by writing 0 on it. इसका मतलब ये जो 0 है ये कोई चार्ज नहीं है. अगर कोई भी एलिमेंट किसी भी रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेता, वो अपनी फ्री फॉर्म में होता है, तो उस पर कोई भी चार्ज नहीं होता, क्योंकि एक एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है नेचर में, क्योंकि उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इक्वल होते हैं. सिमिलरली फॉर द क्लोरीन, क्लोरीन को अगर आप देखें इन अ फ्री फॉर्म, इट ऑल्सो कैरीज द चार्ज. It is carrying 0. It means that it is in a free form. It is not taking part in any chemical reaction. When I am writing here plus, it means now they are combining. Combining means now they are reacting. और जब reaction में ये elements हिस्सा लेंगे, they are producing sodium chloride. And for the sodium chloride formation, you can see sodium has 11 electrons. It means there is 1 electron in the valence shell. It is sharing 1 electron. Whereas क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसे 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए. तो जब सोडियम और क्लोरीन आपस में मिलते हैं रिएक्ट करके, ये जो कंपाउंड फॉर्म करते हैं सोडियम क्लोराइड, इसमें आप देख सकते हैं कि सोडियम इज़ लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन, सो इट कैरीज द चार्ज +1. क्लोरीन रिक्वायर्स 1 इलेक्ट्रॉन, गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन, सो इट हैज़ द चार्ज -1. इस तरह सोडियम क्लोराइड के कंपाउंड में सोडियम इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर रहा है और क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है. इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन वी कैन सी व्हेन द सोडियम इज कंबाइनिंग विद द क्लोरीन, it is showing the oxidation process because it is losing electron, whereas chlorine when combining with the sodium it is gaining 1 electron. And in terms of loss of electron and gain of electron, they both shows oxidation and reduction reaction. This is how the compound sodium chloride is formed. I hope by means of these example redox reactions are clear to you, oxidation as well as reduction reaction. Chemical equations. केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं? जब हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था तो उस वक्त हमने देखा था कि चेंजेस को 2 तरह के नाम दिए गए थे, फिज़िकल और केमिकल चेंजेस. जबकि केमिकल चेंजेस के लिए एक टर्म यूज़ होती है केमिकल रिएक्शन. अ केमिकल चेंज इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अ केमिकल रिएक्शन. एंड अ केमिकल रिएक्शन इज़ ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय द हेल्प ऑफ केमिकल इक्वेशंस. यानी केमिकल इक्वेशंस जो हैं एक तरह से रिएक्शंस को लिखने का शॉर्ट हैंड तरीका है. Shortest way to express the chemical reaction is to write the chemical equation, which are written with the help of symbols and formulae of elements and compound taking part in the reaction. केमिकल इक्वेशंस को कैसे लिखा जाता है, इस चीज़ को समझने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. सबसे पहले हम देखेंगे कि ये लॉ हमें क्या समझाता है और इसकी मदद से फिर हम केमिकल इक्वेशंस को लिखना सीखेंगे. Law of conservation of mass. Statement of the law is matter can neither be created nor be destroyed in a chemical reaction, but it only changes its form. Or the total masses of the reactants is always equal to the sum of masses of product. Law के accordingly किसी भी केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेने वाले एलिमेंट्स, उनके एटम्स जो रिएक्टेंट में हिस्सा ले रहे हैं, उनका टोटल मास यानी जितने एटम रिएक्टेंट्स में हिस्सा ले रहे हैं रिएक्शन के लिए, उनका रिएक्शन के कंप्लीट होने पर उनके नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो सेम या कांस्टेंट रहेंगे, उनके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा. यानी कि जितने एटम्स किसी भी एलिमेंट के रिएक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, रिएक्शन के कंप्लीट होने पर वो एक नई प्रोडक्ट फॉर्म करके देंगे, लेकिन उनके अंदर मौजूद एलिमेंट्स जो हैं वो भी कांस्टेंट होंगे और उनके नंबर ऑफ एटम्स भी सेम रहेंगे. फॉर राइटिंग द बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशंस, इक्वेशंस को बैलेंस करना, पहली बात तो बहुत अच्छी तरह से समझ लेनी है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की मदद से हमें ये पता चला कि कोई भी रिएक्शन जब होगा तो उसमें नंबर ऑफ रिएक्टेंट हमेशा, जो टोटल मास है रिएक्टेंट का, वो प्रोडक्ट में हमेशा इक्वल रहेगा. और इस पर्पस के लिए हम परफॉर्म करते हैं एक ऑपरेशन विच इज़ कॉल्ड द बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन. जब हम इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं तो कुछ रूल्स हमारे जहन में होने चाहिए जो हमें हेल्प आउट करते हैं फॉर द बैलेंसिंग. रूल नंबर 1,
use only coefficients while balancing reactions. Coefficients are always written before symbol and formula of an element or compound. जब भी आप कोई केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो आप कोएफिशिएंट्स यूज़ करेंगे. कोएफिशिएंट्स की प्लेस या उनकी जगह क्या होगी, ये हमेशा लिखे जाएंगे किसी भी एलिमेंट के सिंबल से पहले या कंपाउंड के सिंबल से पहले. अब आपके जहन में सवाल ये पैदा हो रहा होगा कि कोएफिशिएंट्स क्या हैं. कोएफिशिएंट टर्म को मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पर एग्जाम्पल्स की मदद से समझाती हूँ. रूल नंबर 2 क्या होगा, पहले ये देख लेते हैं. कोएफिशिएंट्स, वो नंबर जो कोएफिशिएंट्स का काम करेंगे, वो नंबर जो हम लिखेंगे, दे आर नॉट रिटन इन द मिडल ऑफ द मॉलिक्यूल. आप कोई भी एलिमेंट कंपाउंड लिख रहे हैं, उसके फॉर्मूले के दरमियान में कहीं भी आप किसी नंबर को ऐड नहीं कर सकते. वो नंबर जो हम ऐड कर रहे हैं उसे कोएफिशिएंट कहा जाता है. और इस नंबर का यूज़ हम क्यों कर रहे हैं, फॉर बैलेंसिंग द इक्वेशन. तो कभी भी ये नंबर किसी भी फॉर्मूले के, मॉलिक्यूल के फॉर्मूले के मिड में नहीं लिखा जाएगा. रूल नंबर 3, नेवर यूज़ सबस्क्रिप्ट टू बैलेंस द रिएक्शन. मेरा ख्याल है कि आपको सबस्क्रिप्ट समझ में आ गया होगा. जब हम केमिकल फार्मूला कंपाउंड्स के लिख रहे थे तो हमने सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट टर्म्स यूज़ की थी. सबस्क्रिप्ट का मतलब है वो नंबर जो सिंबल के नीचे लिखा जाता है. तो हम जब बैलेंसिंग करेंगे इक्वेशंस की तो कभी भी हम कोएफिशिएंट को सबस्क्रिप्ट में नहीं लिख सकते. यानी उसकी एक पर्टिकुलर प्लेस है, जैसे रूल नंबर 1 में बिल्कुल क्लियरली विजिबल है. इट इज़ ऑलवेज रिटन बिफोर द सिंबल एंड फॉर्मूला ऑफ एलिमेंट और कंपाउंड. सो नेवर यूज़ द सबस्क्रिप्ट. आप कभी भी सिंबल के नीचे वाले नंबर को, सबस्क्रिप्ट को बैलेंस करने के लिए यूज़ नहीं करेंगे. रूल नंबर 4, डू नॉट चेंज एनी नंबर ऑफ फॉर्मूला, एनी नंबर इन फॉर्मूला विच इज़ ऑलरेडी द पार्ट ऑफ फॉर्मूला. आप कोई भी नंबर फॉर्मूले का चेंज नहीं कर सकते. फॉर्मूले के अंदर आप कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते, बिकॉज द नंबर्स विच आर ऑलरेडी गिवन, दे आर द पार्ट ऑफ फॉर्मूला. आप फॉर्मूले के अंदर कोई भी चेंज अपनी तरफ से नहीं कर सकते, बिकॉज फॉर्मूलाज आर constant. Now taking all these 4 points in mind, we begin how to balance the chemical reactions. Example for coefficient. यहाँ पर मैंने कुछ फॉर्मूले लिए हैं. एक फार्मूला नंबर 1 is सोडियम क्लोराइड, अ कंपाउंड NaCl. इसी तरह एक मॉलिक्यूल लिया है हाइड्रोजन का. द फॉर्मूला फॉर द मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन इज H2. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम किसी रिएक्शन में इन्हें बैलेंस करेंगे तो बैलेंस करने के लिए जो नंबर हम यूज़ करेंगे उसे कोएफिशिएंट कहा जाता है. वो नंबर कुछ भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, 2, 3, 4 एंड सो ऑन. यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर मैंने नंबर 2 यूज़ किया. अगर नंबर 2 इन दोनों कंपाउंड और एलिमेंट को किसी रिएक्शन में बैलेंस करता है तो नंबर 2 लिखने की जगह या पोजीशन क्या होगी. आपको रूल नंबर 1 याद है, इट इज़ ऑलवेज रिटन बिफोर द सिंबल ऑफ एलिमेंट एंड बिफोर द सिंबल ऑफ कंपाउंड. कोएफिशिएंट्स की प्लेस क्या होगी, दे आर ऑलवेज रिटन बिफोर द सिंबल एज वेल एज बिफोर द कंपाउंड. आप इस कोएफिशिएंट को, यू कैन सी द सिंबल ऑफ सोडियम क्लोराइड कंपाउंड, कभी भी सोडियम और क्लोरीन के दरमियान में नहीं लिखेंगे. Coefficients never written in the middle of the molecule. I hope it is quite clear now. Another example, I have taken the 2 a little more complex compounds formula. Sulfuric acid, the formula is H2SO4, whereas one more compound HNO3. Here we have used a bracket and outside the bracket there is 2. It means there are 2 molecules of HNO3. Now you can see, if we are doing the balancing of, for example, these compound, where we have to write the coefficient. The place for the coefficient is constant. It is always written before the symbol and formula of compound. अगर for example किसी रिएक्शन में इस तरह का कंपाउंड आएगा और हमें बैलेंसिंग करनी होगी तो हम कोएफिशिएंट की प्लेस क्या होगी देख लीजिए. सबसे पहले हम जो कंपाउंड का नेम है उससे पहले जो नंबर लिखेंगे वहाँ से वो बैलेंस होगा. सिमिलरली सेकेंड एग्जाम्पल में भी देख लीजिए, जहाँ ब्रैकेट यूटिलाइज हुआ है वहाँ पर भी कोएफिशिएंट की प्लेस क्या होगी. इट इज़ ऑलवेज रिटन बिफोर द फॉर्मूला, जब हम उसका बैलेंसिंग ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे. अब हम वो प्लेसेस देखते हैं जहाँ पर हम कोएफिशिएंट नहीं लिख सकते.
H2SO4 के एग्जाम्पल में देखें, आप कभी भी H2 के बाद या S के बाद कोएफिशिएंट नहीं लगा सकते क्योंकि ये मिड पोजीशन है फॉर्मूले की, आप इसमें चेंजेस नहीं कर सकते। सिमिलरली एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखिए जहां हमने ब्रैकेट यूटिलाइज किया है, आफ्टर द ब्रैकेट साइन हम कोई कोएफिशिएंट नहीं लिखेंगे, H के बाद नहीं लिख सकते, सिमिलरली O के बाद नहीं लिख सकते। कोएफिशिएंट की एक परमानेंट प्लेस है बिफोर द सिंबल एंड बिफोर द कंपाउंड्स फॉर्मूला वी आर यूजिंग वॉट एवर द कोएफिशिएंट वी नीड। रूल नंबर 2 और 1 और 2 आपको क्लियर हो गया होगा। रूल नंबर 3 की तरफ आते हैं जिसमें कहा गया था कि सबस्क्रिप्ट पर हम कोई नंबर नहीं लिखेंगे। अब सबस्क्रिप्ट देख लीजिए एग्जाम्पल में, H2SO4 में सबस्क्रिप्ट है नंबर 2 एंड नंबर 4। हम कोई भी नंबर सबस्क्रिप्ट में नहीं लिख सकते क्योंकि जो नंबर्स ऑलरेडी गिवन है अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 4 वो फॉर्मूले का हिस्सा हैं। हम वहाँ पर कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे और वहाँ पर कोई भी नंबर लिख कर उसे बैलेंस करने की कोशिश नहीं करेंगे क्योंकि कोएफिशिएंट की एक कांस्टेंट प्लेस है। बिल्कुल इसी तरह आप सबस्क्रिप्ट देख सकते हैं HNO3 में भी और हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल में भी। सबस्क्रिप्ट द नंबर्स विच आर रिटन इन द डाउन स्क्रिप्ट ऑफ द फॉर्मूला, जो उसके सिंबल के नीचे जो नंबर लिखे जाते हैं उन्हें कहा जाता है सबस्क्रिप्ट। और इनमें कोई भी चेंज, इन नंबर्स को हम बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते क्योंकि इनमें आने वाला चेंज आपके फॉर्मूले को कम्प्लीटली जो है चेंज कर देगा, ख़राब कर देगा या गलत कर देगा। तो लिहाजा ये कांस्टेंट पोजीशंस होती हैं, यहाँ पर हम कोई भी नंबर अपनी तरफ से ऐड नहीं करेंगे। सबस्क्रिप्ट हमेशा हर फॉर्मूले के कांस्टेंट रहेंगे। तो मुझे यकीन है कि आपको कोएफिशिएंट की प्लेस, बैलेंसिंग कहाँ से होगी ये भी समझ में आ गया है। और सबस्क्रिप्ट जो होते हैं किसी भी फॉर्मूले का हिस्सा होते हैं, उन्हें हम किसी किस्म का कोई चेंज नहीं करेंगे। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस। इक्वेशन नंबर 1, सिंबल्स और फॉर्मूले की मदद से लिखी जाने वाली इक्वेशन हम स्टार्ट करते हैं। और पहली इक्वेशन हमारी है रिएक्शन ऑफ कार्बन विद ऑक्सीजन। कार्बन का सिंबल C है और ऑक्सीजन का सिंबल जो है O2 है। किसी भी रिएक्शन में हिस्सा लेने वाले एलिमेंट्स को, जो बिगिनिंग में हिस्सा लेते हैं, जो सब्सटेंस हिस्सा लेता है, उसके लिए एक पर्टिकुलर टर्म यूज़ की जाती है रिएक्टेंट्स। सो वी आर राइटिंग हियर रिएक्टेंट्स। व्हेन दे कंबाइन, व्हेन दे रिएक्ट टुगेदर, और रिएक्ट करने के लिए, कंबाइन होने के लिए साइन यूटिलाइज होता है प्लस का। दे फॉर्म, दे प्रोड्यूस करना, यील्ड करना, फॉर्म करना। वी आर शोइंग दिस थिंग और दिस प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ एन एरो। दे आर प्रोड्यूसिंग कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन होकर फॉर्म कर रहे हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला है CO। जो चीज़ आफ्टर द एरो लिखी जाती है वो प्रोडक्ट होता है क्योंकि रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद जब रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन होते हैं, दे आर प्रोड्यूसिंग द प्रोडक्ट। हेयर द प्रोडक्ट इज अ कंपाउंड कार्बन मोनोऑक्साइड। अब हम क्या करेंगे कि इनके अंदर इनको किस तरह से बैलेंस किया जाए, इसके लिए बहुत सिंपल तरीका ये है, वी आर ड्राइंग अ टेबल। नाउ इन दिस टेबल यू कैन सी, first we have mentioned the symbols of the element which are taking part in the reaction. After that we have used the term before and after. Before का मतलब ये है कि हमने बैलेंसिंग ऑपरेशन से पहले उन एलिमेंट्स के कितने एटम्स मौजूद हैं ये काउंट करके हमने लिखने हैं। और आफ्टर का मतलब ये है कि जब वो इक्वेशंस बैलेंस हो जाएंगी तो उनमें क्या चेंज आया ये हम ऑब्जर्व करके इस टेबल के अंदर लिखेंगे। सिंबल, इस इक्वेशन में आप क्लियरली देख सकते हैं कि कार्बन ने हिस्सा लिया है और ऑक्सीजन ने। सिंबल ऑफ कार्बन C, ऑक्सीजन इज O। नाउ स्टार्ट काउंटिंग द नंबर ऑफ एटम्स। कितने एटम कार्बन के और कितने ऑक्सीजन के इस रिएक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। बिफोर वाले कॉलम में आप देख सकते हैं देयर इज रिटन 1। इसका मतलब है कि रिएक्टेंट साइड पर कितने कार्बन मौजूद हैं। यहाँ पर सिर्फ एक कार्बन हमें नजर आ रहा है, सो इट इज रिटन एज 1। ऑक्सीजन के 2 एटम्स मौजूद हैं, दैट्स वाई इट इज रिटन एज 2। सिमिलरली यू कैन सी द सेम टेबल ऑन द प्रोडक्ट साइड। प्रोडक्ट साइड पर भी आप देखें, आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास याद है जो क्या कहता था कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इक्वल होने चाहिए, यानी कि जितने भी रिएक्टेंट के नंबर होंगे सेम नंबर ऑफ प्रोडक्ट है। यही एक कांस्टेंट जो है, ये एक कंडीशन है जो कि
इक्वेशंस के अंदर हमें, केमिकल रिएक्शंस के अंदर हमें नज़र आनी चाहिए। और दूसरी बात ये है कि जो भी रिएक्टेंट हिस्सा ले रहे हैं उनकी शक्ल तब्दील हो जाएगी आफ्टर द रिएक्शन। वो कोई नई चीज़ बना कर देंगे, मगर उनकी अपनी जो नेचर है या वो जो उनकी अपनी प्रेजेंस है वो हमें वहाँ पर उसके अंदर कोई और फर्दर चेंज नहीं आएगा कि अगर कार्बन और ऑक्सीजन हिस्सा ले रहे हैं तो वहाँ कोई और एलिमेंट आ जाएगा, या कार्बन और ऑक्सीजन हिस्सा ले रहे हैं तो ऑक्सीजन गायब हो जाएगा। वो पोजीशन, वो एलिमेंट्स वहाँ पर एज इट इज़ मौजूद होंगे, मगर एक नई शक्ल और एक नई प्रोडक्ट फॉर्मेशन के साथ। तो प्रोडक्ट साइड पर भी हम देखेंगे कार्बन मौजूद है और ऑक्सीजन मौजूद है। स्टूडेंट्स, जब हम ये एक टेबल ड्रॉ करते हैं तो एक चीज़ का ध्यान रखते हैं कि प्रोडक्ट्स की शक्ल जो भी हो, कोई भी प्रोडक्ट बनकर सामने आ रही हो, लेकिन हमेशा जितना रिएक्टेंट इस्तेमाल हुआ है वही प्रोडक्ट हमारे सामने होगा। कार्बन ने रिएक्शन में हिस्सा लिया था, कार्बन ने ऑक्सीजन ने रिएक्शन में हिस्सा लिया, प्रोडक्ट में भी किसी भी शक्ल के अंदर कार्बन ही मौजूद है और ऑक्सीजन मौजूद है। नाउ इन द प्रोडक्ट साइड यू कैन सी ऑलरेडी वी हैव वन कार्बन प्रेजेंट देयर एंड वन ऑक्सीजन, and according to the law of conservation of mass you can see the equation is unbalanced. लॉ के अकॉर्डिंगली जितना नंबर ऑफ रिएक्टेंट होगा उतना ही नंबर ऑफ प्रोडक्ट होना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है, बिकॉज रिएक्टेंट साइड पर एक कार्बन है, प्रोडक्ट साइड पर भी एक कार्बन है, मगर रिएक्टेंट साइड पर 2 ऑक्सीजन है और प्रोडक्ट साइड पर एक ऑक्सीजन है। इट मीन्स वी नीड टू बैलेंस दिस इक्वेशन फ्रॉम द प्रोडक्ट साइड। फॉर दिस पर्पज़ व्हाट टू डू, आपको याद है ना कि हमने इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए जो नंबर इस्तेमाल करना है उसको कोएफिशिएंट कहा जाता है, और उसकी एक ख़ास जगह है, किसी भी सिंबल या फॉर्मूले से उसे हमेशा पहले लिखा जाता है। सो हेयर फॉर द बैलेंसिंग वी हैव अ प्लेस फॉर द कोएफिशिएंट इज बिफोर कार्बन मोनोऑक्साइड। सो द सुइटेबल कोएफिशिएंट रिक्वायर्ड हेयर इज 2, बिकॉज हमें ऑक्सीजन का नंबर जो है वो इंक्रीज कर रहा है और उसे कितना कर देना है 2। सो आई एम राइटिंग कोएफिशिएंट हेयर एज 2। नाउ यू कैन सी बाय राइटिंग दिस 2, ये 2 पूरे के पूरे कंपाउंड के ऊपर अप्लाई होगा, यानी ये 2 सिर्फ कार्बन के साथ नहीं है, ये 2 सिर्फ ऑक्सीजन के साथ नहीं है, ये पूरे कार्बन मोनोऑक्साइड के ऊपर अप्लाई होगा। तो इस 2 के लिखने की वजह से अब हमारे पास प्रोडक्ट साइड पर कार्बन की तादाद हो गई है 2, जो बिफोर यानी इस 2 को लिखने से पहले 1 था। इस 2 की वजह से ऑक्सीजन हमारे पास हो गए हैं 2, जो कि 2 लिखने से पहले ओनली 1 था। अब हम रिएक्टेंट साइड पर देखते हैं कि हमारा ऑक्सीजन जो है वह दोनों तरफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में बैलेंस हो गया है, मगर अब रिएक्टेंट साइड पर कार्बन बैलेंस नहीं है। कार्बन को बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू राइट कोएफिशिएंट बिफोर द कार्बन। सो नाउ by writing the coefficient with the carbon, the equation is balanced, and according to the law of conservation of mass, the number of atom in the reactant side must be equal to the number of atom in the product side. Now you can see carbon reactant side पर 2 हैं, इसी तरह product side पर भी 2 हैं, ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड पर 2 थे और अब रिएक्टेंट साइड पर भी 2 हो गए हैं। This is how the equation is balanced now. Here we have second example. This is a reaction between sodium and oxygen. The symbol for sodium is Na. When it is reacting with, it is combining with, we are marking here the plus sign. Oxygen, the symbol of oxygen is O2. The formula of oxygen molecule is O2. जब हम रिएक्शंस में ऑक्सीजन को लिखते हैं तो हम इसका सिंबल O सिर्फ नहीं लिखते, हम इसकी मॉलिक्यूलर स्टेट O2 लिखते हैं। जब भी ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन रिएक्शन में हिस्सा लेंगे तो हम उनकी मॉलिक्यूलर स्टेट लिखते हैं, ये डायटोमिक फॉर्म में होते हैं। वी आर राइटिंग O2. They are producing, we mark here an arrow sign. They are producing sodium oxide. सोडियम ऑक्साइड कंपाउंड का फॉर्मूला है Na2O, यानी 2 सोडियम और 1 ऑक्सीजन मिलकर फॉर्म करते हैं कंपाउंड सोडियम ऑक्साइड। अब हम अगेन सबसे पहले हम लिखेंगे रिएक्टेंट साइड पर हमारे पास एलिमेंट्स थे सोडियम और ऑक्सीजन, रिएक्टेंट पोजीशन शो करेंगे। सोडियम ऑक्साइड हमारे पास प्रोडक्ट है तो उसके लिए हम टर्म प्रोडक्ट लिखेंगे। वी आर स्टार्टेड मेकिंग द टेबल। सिंबल लिखेंगे वो एलिमेंट्स जो रिएक्शन में हिस्सा ले रहे हैं रिएक्टेंट साइड पर, इट इज़ सोडियम एंड ऑक्सीजन। द सिंबल ऑफ सोडियम इज Na एंड द सिंबल ऑफ ऑक्सीजन इज O.
How many sodiums are there? There is only one sodium, so we have written 1. There are 2 atoms of oxygen, so we have written 2 with the oxygen. Now the table for the product side. जो एलिमेंट्स रिएक्टेंट साइड पर हिस्सा ले रहे हैं लाजमी है कि वही प्रोडक्ट बना रहे हैं, मगर किसी नई फॉर्म के अंदर जो है एक नई चीज़ बनकर सामने आएगी, मगर एलिमेंट्स के नंबर चेंज नहीं होंगे, कोई नया एलिमेंट नहीं आ जाएगा, कोई एलिमेंट कम नहीं हो जाएगा। सोडियम मौजूद है, ऑक्सीजन मौजूद है, इनका स्केल आप देख लीजिए कंपैरिजन की पॉइंट ऑफ व्यू से। हम एलिमेंट्स की सीक्वेंस हमेशा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में सेम रखते हैं। सोडियम के एटम्स कितने मौजूद हैं हमारे पास? यहाँ प्रोडक्ट साइड पर आप देख सकते हैं 2 सोडियम हैं, जबकि 1 ऑक्सीजन मौजूद है। नाउ व्हाट टू डू फॉर द बैलेंसिंग? अगर आप इस इक्वेशन को देखें तो प्रोडक्ट साइड पर सोडियम जो है वो ज़्यादा है, 2 हैं, और रिएक्टेंट साइड पर सोडियम कम है। सिमिलरली रिएक्टेंट साइड पर ऑक्सीजन ज़्यादा है और प्रोडक्ट साइड पर ऑक्सीजन कम है। अब हम क्या करेंगे? प्रोडक्ट साइड पर ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हमारी रिक्वायरमेंट है कोई ऐसा नंबर जो कि ऑक्सीजन को बैलेंस कर दे। तो हमें नंबर 2 लिखने से हमारा ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएगा। वेयर इज़ द प्लेस फॉर द कोएफिशिएंट? आपको याद है हमेशा किसी भी कंपाउंड के सिंबल से पहले हम कोएफिशिएंट लगाते हैं, तो यहाँ पर हमारा सूटेबल कोएफिशिएंट क्या है? 2। बट दिस 2 इज़ अप्लाइड फॉर द होल फॉर्मूला। ये 2 सिर्फ और सिर्फ सोडियम के पास लगा हुआ नहीं, ये सिर्फ ऑक्सीजन के साथ नहीं, ये पूरे के पूरे कंपाउंड पर अप्लाई होगा। इसका मतलब ये है कि ये 2 सोडियम के सबस्क्रिप्ट में लिखे हुए 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह प्रोडक्ट साइड पर सोडियम का नंबर बन जाएगा 4। ये 2 हमने ऑक्सीजन के लिए लिखा था, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 हो गया है क्योंकि व्हेन मल्टीप्लाई दिस 2 विद द ऑक्सीजन 2 वन ज़ा 2, लेकिन ऑलरेडी सोडियम के साथ फॉर्मूले में 2 लिखा हुआ था, तो 2 2 ज़ा 4। सोडियम का नंबर यहाँ प्रोडक्ट साइड में इंक्रीज हो गया है। अब हम देखेंगे कि हमारे पास प्रोडक्ट में सोडियम 4 और ऑक्सीजन 2 हो गए हैं। रिएक्टेंट साइड पर ऑक्सीजन हमारा बैलेंस है, लेकिन सोडियम यहाँ पर हमारे पास 1 है। तो ऐसा कोएफिशिएंट जो सोडियम को बैलेंस कर दे और प्रोडक्ट के इक्वल कर दे। सो वी विल राइट कोएफिशिएंट, अ सुइटेबल कोएफिशिएंट 4 हियर, क्योंकि 4 लिखने से रिएक्टेंट साइड का जो आपका सोडियम है वो प्रोडक्ट साइड के सोडियम के साथ बैलेंस हो जाता है। अब आप देख सकते हैं कि रिएक्टेंट साइड पर 4 सोडियम्स हैं, प्रोडक्ट साइड पर 4 सोडियम हैं, ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड पर 2 हैं, इसी तरह प्रोडक्ट साइड पर भी 2 हैं। तो ये इक्वेशन हमारी एक बैलेंस्ड इक्वेशन है। हमने सबसे पहले ऑक्सीजन के नंबर इंक्रीज़ किए प्रोडक्ट साइड पर, जिसकी वजह से सोडियम का नंबर भी इंक्रीज़ हो गया, क्योंकि ये 2 पूरे इंटायर कंपाउंड के ऊपर अप्लाई हो रहा था। बिल्कुल इसी तरह जब सोडियम का नंबर इंक्रीज हुआ, वी हैव टू मेक अ चेंज इन द रिएक्टेंट साइड एज वेल। सो वी हैव रिटन अ कोएफिशिएंट 4 हियर। द इंटायर इक्वेशन इज बैलेंस्ड नाउ। Now the third example is reaction of nitrogen with hydrogen. जैसा कि मैंने आपको बताया कि एलिमेंट्स नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन ये नेचर में डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। जब भी आप इनके केमिकल इक्वेशंस या रिएक्शंस लिखते हैं ये हमेशा अपनी डायटोमिक फॉर्म में लिखे जाते हैं। सो फॉर द नाइट्रोजन वी राइट हेयर N2 रिएक्टिंग विद, वी पुट हेयर प्लस साइन, हाइड्रोजन H2। जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में रिएक्ट करते हैं दे आर प्रोड्यूसिंग अमोनिया गैस। द फॉर्मूला फॉर अमोनिया इज NH3। अब आप देख सकते हैं कि रिएक्टेंट साइड पर नाइट्रोजन N2 है, हाइड्रोजन H2 है और ये प्रोड्यूस करके दे रहा है अमोनिया। द फॉर्मूला फॉर इट इज NH3। नाउ फर्स्ट स्टार्ट मेकिंग द टेबल which is comprising of the symbols and the number of atom before the balancing and after the balancing। नाइट्रोजन का सिंबल लिखा हुआ है हमारे पास और इसके अंदर कितने नाइट्रोजन है रिएक्टेंट साइड पर? 2 नाइट्रोजन एटम्स। और कितने हाइड्रोजन हमारे पास है रिएक्टेंट साइड पर? 2 हाइड्रोजन्स। सिमिलरली प्रोडक्ट साइड का स्केल हम देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास 1 नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन मौजूद है। इसका मतलब ये हुआ कि ये इक्वेशन अनबैलेंस्ड है। वी हैव टू मेक द बैलेंसिंग फॉर इट। बैलेंसिंग करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर जो देखनी है बेटा वो ये है कि क्योंकि हाइड्रोजन के साथ 3 लगा हुआ है
और ये एक ऑड नंबर है। जब भी हमारे पास कोई ऑड नंबर आ जाता है तो हमें उसको इवन में कन्वर्ट करना पड़ता है, क्योंकि आप देख सकते हैं इस रिएक्शन में कि हमारे पास ऐसा कोई नंबर नहीं है जो रिएक्टेंट के हाइड्रोजन को 3 कर दे। इसका मतलब ये है कि चेंजेस हमें प्रोडक्ट साइड पर करनी है, और उसमें सबसे पहले हम ये देखते हैं कि क्योंकि नाइट्रोजन रिएक्टेंट साइड पर 2 और प्रोडक्ट साइड पर 1 है, तो नाइट्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर 2 लगा देते हैं। जब हमने नाइट्रोजन को बैलेंस करने के लिए 2 लगाया तो ये 2 पूरे कंपाउंड के ऊपर अप्लाई हुआ। देयर आर 2 नाइट्रोजन्स नाउ। अब आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन जो 3 नंबर्स में था वो इवन नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा, बिकॉज दिस 2 मल्टीप्लाइज विद द सबस्क्रिप्ट 3 नंबर। 2 3s are 6, और अब हमारे पास हाइड्रोजन का नंबर जो है वो 6 हो गया है प्रोडक्ट साइड में, बिकॉज ऑफ राइटिंग कोएफिशिएंट फॉर नाइट्रोजन। दिस 2 applied for the entire formula, and now we have nitrogen in a balanced form and hydrogen number increased to from 3 to 6. इसका मतलब ये हुआ कि हमें प्रोडक्ट साइड पर हाइड्रोजन को इंक्रीज करने की ज़रूरत है, क्योंकि नाइट्रोजन हमारा ऑलरेडी बैलेंस्ड हो चुका है। अब हम रिएक्टेंट साइड पर ऐसा कौन सा कोएफिशिएंट यूज़ करें कि जिससे हमारा हाइड्रोजन का नंबर जो है वो 6 हो जाए। सो द मोस्ट सुइटेबल नंबर हियर इज़ 3. If we put 3 as a coefficient before the hydrogen, then this 3 multiplies with the subscript of hydrogen to 3 2s are 6, and now we have balanced hydrogen on both the sides. अब आप देख सकते हैं कि हमारा नाइट्रोजन भी दोनों रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड पर बैलेंस्ड है और हाइड्रोजन भी बैलेंस्ड है, और अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट और टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट एटम्स जो हैं वो इक्वल हो गए हैं, और ये इक्वेशन जो है हमारी बैलेंस हो गई है। नाउ वी हैव द एग्जाम्पल ऑफ CH4 रिएक्टिंग विद O2। CH4 एक कंपाउंड है जिसको वैसे मीथेन कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि मैं आपको नामों से कंफ्यूज नहीं कर रही, आपको क्योंकि सिंबल्स और फॉर्मूले की नो हाउ है, तो आप ये देख सकते हैं कि CH4 एक कंपाउंड है विच इज़ रिएक्टिंग विद O2 ऑक्सीजन। जब CH4 O2 से रिएक्ट कर रहा है, और अदर टर्म्स हम ये भी कह सकते हैं ऐसा रिएक्शन जिसमें मीथेन की बर्निंग हो रही है, और जब भी बर्निंग का वर्ड आएगा वी आर राइटिंग O2। They are producing, for producing we mark arrow sign. They are producing carbon dioxide and water. मीथेन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्ट कर रहा है, CH4 combining with oxygen, reacting with oxygen, producing carbon dioxide and water. Now first we will make the table for the reactant side and same for the product side. reactant side पर आप देखें कितने एलिमेंट्स हिस्सा ले रहे हैं। यहाँ पर आपको नजर आएगा कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। सबसे पहले हम तीनों एलिमेंट्स के सिंबल लिखेंगे और इनके कितने एटम्स हैं उनके नंबर आप देख सकते हैं। कार्बन का 1 एलिमेंट मौजूद है, हाइड्रोजन के 4 एटम मौजूद हैं और ऑक्सीजन के 2 एटम्स मौजूद हैं इन द रिएक्टेंट साइड। नाउ सेम वी विल डू फॉर द प्रोडक्ट साइड, वी विल काउंट द नंबर ऑफ एटम। यहाँ पर एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, जिसको आपको बिल्कुल ख्याल से करना है, और वो ये है कि प्रोडक्ट कुछ भी बन रहा हो, एलिमेंट्स जो रिएक्टेंट साइड पर यूटिलाइज हुए हैं वो एक नई फॉर्मेशन और नई शक्ल के साथ नई प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं। लेकिन कभी भी ये नहीं होगा कि रिएक्टेंट साइड पे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने हिस्सा लिया और प्रोडक्ट साइड पे ऑक्सीजन गायब हो गया या हाइड्रोजन गायब हो गया। ये बात तो फैक्ट है कि जो एलिमेंट्स रिएक्शन में हिस्सा लेंगे वही प्रोडक्ट साइड पर कोई नई चीज़ बना कर देंगे। तो हम जब भी स्केल ड्रॉ करते हैं तो ये बात ख्याल रखिएगा कि टेबल के अंदर एलिमेंट्स की सीक्वेंस हम रिएक्टेंट साइड को ही फॉलो करते हैं, चाहे वो प्रोडक्ट में कुछ भी बना रहे हो। सो स्केल या टेबल बनाते वक्त हम देख रहे हैं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सेम सीक्वेंस के अंदर लिखे हैं, ताकि हम इनको कंपेयर कर सकें कि कौन सी क्वांटिटी कहाँ पर हमें चेंज करनी है। प्रोडक्ट साइड पर आप कार्बन को काउंट करें, हाउ मेनी कार्बन वी हैव, ओनली 1, एंड हाउ मेनी हाइड्रोजन्स वी हैव इन द प्रोडक्ट साइड, ओनली 2 हाइड्रोजन, and how many oxygens we have in the product side, there are 3 oxygens you can see, because 2 ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्मूले में नज़र आ रहे हैं, इसी तरह प्लस के साइन के बाद 1 ऑक्सीजन प्रोडक्ट साइड में वाटर के फॉर्मूले में है। तो इनको हम कंबाइन करेंगे, प्रोडक्ट साइड की तमाम सेम एलिमेंट एक ही जगह काउंट होते हैं, 2 कार्बन डाइऑक्साइड के ऑक्सीजन और 1 वाटर का कंबाइन करें तो देयर आर टोटल नंबर ऑफ 3 ऑक्सीजन इन द प्रोडक्ट साइड।
अब आप इस टेबल को कंपेयर करें कि आपको किस एलिमेंट का नंबर इंक्रीज करना है। कार्बन दोनों साइड्स के ऊपर ऑलरेडी बैलेंस्ड है, 1 कार्बन इन द रिएक्टेंट साइड, 1 इन द प्रोडक्ट साइड। हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड पर 4 हैं जबकि प्रोडक्ट में सिर्फ 2 हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड पर 2 हैं जबकि प्रोडक्ट साइड में 3 हैं। और मैंने आपसे क्या कहा था, जब 3 का नंबर आता है तो हम क्या करते हैं, उसको इवन में कन्वर्ट कर देते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमें क्योंकि हाइड्रोजन का नंबर इंक्रीज करना है और ऑक्सीजन को हमें एक इवन फॉर्मेशन देनी है, तो वी नीड टू राइट कोएफिशिएंट विद द फॉर्मूला ऑफ वाटर, क्योंकि हाइड्रोजन का नंबर इंक्रीज करना है और कार्बन ऑलरेडी बैलेंस्ड है। हमने जो सुइटेबल कोएफिशिएंट यहाँ पर है हमारी नज़र में, वो हमने 2 लगा दिया। ये 2 क्योंकि पूरे फॉर्मूले के ऊपर अप्लाई होगा वाटर के, तो हाइड्रोजन इस 2 के लगने से चेंज हो जाएगा, क्योंकि उसके सबस्क्रिप्ट में 2 लिखा हुआ है फॉर्मूले में। तो ये 2 फॉर्मूले के 2 से जब मल्टीप्लाई हुआ तो हाइड्रोजन का नंबर बन गया 4 और ऑक्सीजन हमारा बैलेंस हो गया 2। लेकिन अब अगर हम देखें तो ऑक्सीजन इस 2 और कार्बन डाइऑक्साइड के ऑक्सीजन 2, जब हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन प्रोडक्ट साइड पर भी हमारे पास 4 हो गए। इस कोएफिशिएंट को लगाने से तो ऑक्सीजन 2 हो गए, लेकिन हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड में भी ऑक्सीजन मौजूद हैं 2, तो कलेक्टिवली प्रोडक्ट साइड पर टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन हमारे पास हो गए हैं 4। नाउ यू कैन सी द रिएक्टेंट साइड। कार्बन इज ऑलरेडी बैलेंस्ड, नाउ वी हैव बैलेंस्ड हाइड्रोजन कंडीशन। ऑक्सीजन का नंबर अब हमारे पास प्रोडक्ट में 4 हो गया है जबकि रिएक्टेंट में ये 2 हैं। तो ऐसा कौन सा कोएफिशिएंट हम रिएक्टेंट पर लिख दें कि हमारा रिएक्टेंट साइड का ऑक्सीजन भी 4 हो जाए? यस, वी विल राइट 2 with the symbol of oxygen. So the oxygen in the reactant side becomes 4. अब आप इन दोनों स्केल को कंपेयर कर सकते हैं। हमारे रिएक्टेंट साइड पर जो एटम्स हैं एलिमेंट्स के और प्रोडक्ट साइड पर बोथ आर इक्वल नाउ। देयर इज 1 कार्बन ऑन बोथ द साइड्स, देयर आर 4 हाइड्रोजन्स ऑन बोथ द साइड्स, and now there are 4 oxygens on both the sides, and our equation is according to the law of conservation of mass is balanced. The total number of atoms in the reactant side are now equal to the total number of atom in the product side. Example number 5, calcium carbonate. The symbol of compound is CaCO3. When it combines or reacts with हाइड्रोक्लोरिक एसिड और हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, CaCO3 सिंबल है कैल्शियम कार्बोनेट का। HCl के साथ जब ये कंबाइन होता है ये हमें देता है कैल्शियम क्लोराइड जिसका सिंबल है CaCl2। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये 3 प्रोडक्ट्स जो हैं इस रिएक्शन से हमें मिलते हैं। नाउ स्टार्ट मेकिंग द टेबल फॉर द रिएक्टेंट साइड। कैल्शियम कार्बोनेट हाइड्रोजन क्लोराइड रिएक्टेंट्स हैं, कैल्शियम क्लोराइड कार्बन डाइऑक्साइड वाटर प्रोडक्ट्स हैं। रिएक्टेंट्स में सबसे पहले सिंबल्स एलिमेंट्स की सीक्वेंस देखें। हमारे पास यहाँ मौजूद है कैल्शियम, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और क्लोरीन। टोटल 5 जो एलिमेंट्स हैं वो इस रिएक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। प्रोडक्ट का स्केल जब बनेगा तो लाजमी बात है यही 5 रिएक्टेंट्स हैं, तो इसीलिए हम उन्हें 5 रिएक्टेंट्स की सीक्वेंस एज इट इज़ सेम रहेगी, चाहे वो कोई भी प्रोडक्ट किसी भी फॉर्म में फॉर्म कर रहे हों। Calcium, carbon, oxygen, hydrogen and chlorine. Now first start writing or counting the number of atom in the reactant side. There is only 1 calcium in the reactant side. It is written. 1 कार्बन मौजूद है, 3 ऑक्सीजन है, 1 हाइड्रोजन और 1 क्लोरीन का एटम मौजूद है। प्रोडक्ट साइड पर अगर हम देखें तो कैल्शियम प्रोडक्ट साइड पर भी 1 ही है, कार्बन भी प्रोडक्ट साइड पर 1 है। ऑक्सीजन अगर हम देखें तो 3 ऑक्सीजन हैं, 2 कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्मूले में नज़र आ रहे हैं और 1 वाटर के फॉर्मूले में, तो टोटल 3 ऑक्सीजन प्रोडक्ट साइड पर। हाइड्रोजन 2 हैं प्रोडक्ट साइड पर और क्लोरीन भी 2 हैं। इसका मतलब ये हुआ अगर आप दोनों को कंपेयर करें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड पर, तो हाइड्रोजन और क्लोरीन प्रोडक्ट साइड पर 2-2 हैं जबकि रिएक्टेंट साइड पर 1-1 हैं। बज़ाहिर दिखने में इतनी बड़ी इक्वेशन जो है बहुत आराम से बैलेंस हो सकती है क्योंकि हमको सिर्फ हाइड्रोजन और क्लोरीन के नंबर इंक्रीज करने। सो वी राइट कोएफिशिएंट 2 इन द रिएक्टेंट साइड। Now the hydrogen becomes 2 and chlorine becomes 2. The entire oxygen gets balanced. You can see calcium 1 on both the side, carbon is 1 on both the side, oxygen 3 on both the sides.
hydrogen 2 on both the sides and chlorine now 2 on both the sides. The entire equation is balanced now. Equation number 6, glucose. The formula for it is C6H12O6. ये एक ऐसा रिएक्शन है जिसके अंदर ग्लूकोज की फर्मेंटेशन हो रही है और वो कन्वर्ट हो रहा है C2H5OH में और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है. This is a reaction in which C6H12O6 is changes into C2H5OH and producing carbon dioxide. अब इस रिएक्शन में आप देखें, जब हम इसका रिएक्टेंट साइड का टेबल बनाएंगे तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 3 रिएक्शन में हिस्सा ले रहे हैं. देयर आर 6 कार्बन्स इन द रिएक्टेंट साइड, देयर आर 12 हाइड्रोजन इन द reactant side and 6 oxygen in the reactant side, whereas in the product side you can see C2H5OH and carbon dioxide. कार्बन अगर आप देखें तो C2H5OH के फॉर्मूले में 2 कार्बन हैं, कार्बन डाइऑक्साइड में 1 कार्बन है, तो टोटल प्रोडक्ट साइड में 3 कार्बन है हमारे पास. हाइड्रोजन को अगर आप काउंट करें तो C2H5OH के फॉर्मूले में आप देखें एक जगह 5 हाइड्रोजन है. सिमिलरली इन द सेम फॉर्मूला देयर इज़ 1 हाइड्रोजन, तो 5 + 1 6 हाइड्रोजन इन द रिएक्टेंट साइड. ऑक्सीजन आप देखें तो देयर आर 3 ऑक्सीजन. एक ऑक्सीजन C2H5OH के फॉर्मूले में है और 2 ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड के, तो टोटल ऑक्सीजन हमारे पास हो गए 3. इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास प्रोडक्ट साइड में 3 कार्बन, 6 हाइड्रोजन और 3 ऑक्सीजन मौजूद हैं. हमें कार्बन का नंबर भी इंक्रीज़ करना है, हाइड्रोजन का नंबर भी इंक्रीज़ करना है और ऑक्सीजन का भी. तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि व्हाट इज़ आवर रिक्वायरमेंट. हाइड्रोजन हमें क्योंकि 12 कर देने हैं, जबकि रिएक्टेंट साइड पर ये 12 और प्रोडक्ट में 6 हैं. इसका मतलब है 6 को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें बड़े आराम से 12 हाइड्रोजन मिल सकते हैं. तो फर्स्ट वी विल राइट कोएफिशिएंट विद द फॉर्मूला ऑफ C2H5 and OH. यहाँ पर कोएफिशिएंट 2 लगाने से पूरे फॉर्मूले पर क्या असर होगा ये देखते हैं. बाय मल्टीप्लाइंग दिस 2 विद द कार्बन वी हैव 4 कार्बन्स नाउ. ये 2 हाइड्रोजन के 5 से मल्टीप्लाई हुआ तो उसको इसने पहले हाइड्रोजन को इसने 10 कर दिया, ऑक्सीजन को इसने 2 कर दिया और पहले हाइड्रोजन के बाद जो दूसरा हाइड्रोजन है उसको इसने 2 कर दिया. इस कोएफिशिएंट को लगाने से अगर आप गौर करें तो C2H5OH फॉर्मूले पर ये असर हुआ कि कार्बन यहाँ पर 4 हो गए, हाइड्रोजन हमारा बैलेंस हो गया है, 12 हो गए हैं क्योंकि 5 2s are 10 हाइड्रोजन ये और आखिरी वाला हाइड्रोजन जो है वो 2 हो गया, तो टोटल 12 हो गए. ऑक्सीजन इस 2 को लगाने से हमारे पास टोटल 4 हो गए हैं प्रोडक्ट साइड पर, 2 यहाँ और 2 कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्मूले में मौजूद है. स्टिल देयर इज़ नीड ऑफ बैलेंसिंग द कार्बन एंड ऑक्सीजन बिकॉज हाइड्रोजन बाय डूइंग दिस एक्टिविटी इज़ बैलेंस्ड. अब हम क्या करेंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं इस 2 को लगाने से कार्बन 4 हो गए हैं हमारे पास, हाइड्रोजन 12 हो गए हैं और ऑक्सीजन इस 2 को लगाने के बाद टोटल 4 हो गए. इसका मतलब अभी भी हमें कार्बन और ऑक्सीजन को बढ़ाना है. अब इस पर्पस के लिए हम क्या करेंगे, 2 का कोएफिशिएंट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ लगाएंगे क्योंकि अभी हमें हाइड्रोजन को चेंज नहीं करना, सिर्फ कार्बन और ऑक्सीजन को चेंज करना है. By writing 2 with the coefficient of carbon dioxide, now we have there are 6 carbon in the product side as well as 6 oxygen in the product side. Now you can compare both the equations, both the reactant and product atoms. Now there are 6 carbon on both the sides, there are 12 hydrogen on both the sides as well as there are 6 oxygen on both the sides. This is how the entire equation is balanced. अब हम थोड़ा सा एक कॉम्प्लेक्स इक्वेशन देखेंगे. बैलेंस करना इसे भी बहुत आसान है. कॉम्प्लेक्स इन द सेंस कि थोड़ा नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स जो हैं वो पढ़ रहे हैं और हम देख रहे हैं कि बज़ाहिर दिखने वाली इतनी बड़ी सी इक्वेशन भी बहुत आराम से सॉल्व हो जाएगी. Na3PO4 एक कंपाउंड है. इट इज़ कंबाइनिंग विद KOH. Na3PO4 in the reactant side combining with KOH and it forms NaOH and K3PO4. First we will start making
the table which shows the number of elements and their respective atoms. सिंबल्स देखेंगे हम कौन कौन से एलिमेंट रिएक्शन में हिस्सा ले रहे हैं. सोडियम का सिंबल Na, फॉस्फोरस के लिए P लिखा हुआ है, ऑक्सीजन O, पोटेशियम का K और हाइड्रोजन का H. तो फिर से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 5 एलिमेंट्स जो हैं वो रिएक्शन में हिस्सा ले रहे हैं. प्रोडक्ट साइड पर भी स्केल की सीक्वेंस में एलिमेंट्स, चाहे कोई भी कंपाउंड बना रहे हो, जाहिर है यही एलिमेंट्स मौजूद होंगे, तो हम उस सीक्वेंस को चेंज नहीं करेंगे, एलिमेंट्स सेम स्केल पर रहेंगे. हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं इनके नंबर ऑफ एटम्स की. रिएक्टेंट साइड पर 3 सोडियम, 1 फॉस्फोरस, 5 ऑक्सीजन आपको नज़र आ रहे होंगे, 4 हैं Na3PO4 के फॉर्मूले में और KOH में 1 ऑक्सीजन मौजूद है. तो रिएक्टेंट साइड पर जितने भी सेम एलिमेंट्स होते हैं उन्हें एक ही बार काउंट किया जाता है. 4 ऑक्सीजन हैं Na3PO4 के फॉर्मूले में और 1 KOH का, टोटल 5 ऑक्सीजन. पोटेशियम हमारे पास 1 है और इसी तरह हाइड्रोजन भी KOH के फॉर्मूले में 1 ही है. सो बिफोर बैलेंसिंग सोडियम 3, phosphorus 1, oxygen 5, potassium 1 and hydrogen 1. Now move to the product side. स्केल मैंने आपसे कहा कोई भी नए प्रोडक्ट्स बन रहे हों, एलिमेंट्स वही सेम हैं बट दे आर फॉर्मिंग समथिंग न्यू. तो हम एलिमेंट्स की सीक्वेंस जो है, एलिमेंट्स का जो नाम है उनकी सीक्वेंस हमेशा रिएक्टेंट साइड के अकॉर्डिंगली लिखते हैं ताकि हमें कंपैरिजन ईजी हो कि किस एलिमेंट को कहाँ पर इंक्रीज़ करना है. सोडियम के अगर आप देखें तो प्रोडक्ट साइड पर 1 एलिमेंट है, फॉस्फोरस का K3PO4 में 1 एलिमेंट है, 1 एटम है. ऑक्सीजन को अगर आप देखें तो NaOH में 1 ऑक्सीजन, PO4 में 4 ऑक्सीजन है, तो टोटल 5 ऑक्सीजन मौजूद है. पोटेशियम अगर आप देखें तो 3 मौजूद हैं प्रोडक्ट साइड पर और हाइड्रोजन जो है वो 1 मौजूद है. तो स्केल प्रोडक्ट साइड का आप देखें तो 1 1 5 3 1. अब हमें ये देखना है कि किस एलिमेंट का नंबर इंक्रीज़ करना है. हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे मेटल से. अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूँ कि आप ये कहेंगे कि मिस यहाँ पर मेटल का टर्म यूज़ कर रही हैं. तो अगर आप देखें तो रिएक्टेंट साइड पर Na3 है जो कि ऑड नंबर है. तो बजाय इसके कि पहले उसको इवन में कन्वर्ट कर दिया जाए, हम कोशिश करेंगे कि पहले मेटल्स जो होते हैं हम उनको एज इट इज़, ये मोनो एटॉमिक होते हैं. मेटल्स की ये बात याद रखिएगा, ये मोनो एटॉमिक स्टेट में होते हैं. मोनो मीन्स मेड अप ऑफ ओनली 1 एटम. अब मोनो एटॉमिक स्टेट में एग्जिस्ट करने वाला सोडियम यहाँ 3 मौजूद है, तो हम इसे ऑड या इवन के चक्करों में नहीं पड़ेंगे, हम इसको डायरेक्ट बैलेंस करेंगे. कोई ऐसा नंबर जो हमें सोडियम को डायरेक्ट 3 कर दे. तो वी विल राइट इन द प्रोडक्ट साइड 3 सोडियम. 3 जो है वो पूरे कंपाउंड के ऊपर अप्लाई हो रहा है. मिसाल के तौर पर सबस्क्रिप्ट में रिएक्टेंट साइड पर जो 3 सोडियम के नीचे लगा हुआ है, अगर ये किसी नॉन मेटल के साथ होता, यानी ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या हाइड्रोजन के साथ ये 3 लगा हुआ होता, तो हम पहले उसको इवन नंबर में कन्वर्ट करते थे. लेकिन यहाँ पर क्योंकि मेटल है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मेटल को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं. वी राइट 3 विद NaOH. ये 3 पूरे NaOH पर अप्लाई होगा. सोडियम इस 3 को लगाने से हमारे पास 3 हो जाएंगे. इस 3 को लगाने से ऑक्सीजन हमारे पास जो पहले 5 थे अब 7 हो जाएंगे, बिकॉज 3 यहाँ पर NaOH के फॉर्मूले में हो गए. दिस 3 अप्लाइज फॉर एवरी एलिमेंट, 3 सोडियम, 3 ऑक्सीजन एज वेल एज 3 हाइड्रोजन फॉर दिस कंपाउंड. ऑक्सीजन ओवरऑल हमने देखा इस 3 को लगाने से 7 हो गए हमारे पास, और हाइड्रोजन को अगर हम देखें तो वो भी हमारे पास 3 हो गए. बिकॉज ऑफ एडिंग कोएफिशिएंट 3 विद NaOH हमारे पास हाइड्रोजन भी 3 हो गए. अब हम देख सकते हैं कि हमारे पास क्या सीक्वेंस है. 3 सोडियम हो गए हैं जो दोनों साइड्स पर बैलेंस हो चुके हैं. फॉस्फोरस हमारे पास दोनों साइड्स पर 1 है और वो एज इट इज़ 1 मौजूद है. ऑक्सीजन हमारे पास नंबर चेंज हो गया है, वो अब हमारे पास 7 हो गए बिकॉज ऑफ दिस 3 इन द प्रोडक्ट साइड. जबकि ऑक्सीजन हमारे पास रिएक्टेंट साइड पर 5 है. पोटेशियम हमारे पास प्रोडक्ट साइड में 3 है, जबकि रिएक्टेंट साइड पर हमारे पास 1 पोटेशियम मौजूद है. हाइड्रोजन हमारे पास प्रोडक्ट साइड में 3 हो गए हैं, जबकि रिएक्टेंट साइड पर 1 है. इसका मतलब ये हुआ कि अब हमें पोटेशियम और हाइड्रोजन को 3 करना है और ऑक्सीजन का नंबर 7 हो जाएगा. फॉर दिस पर्पज़ वी राइट कोएफिशिएंट विद KOH, क्योंकि यहाँ पर हमें पोटेशियम और हाइड्रोजन को 3 बनाना है
और पोटेशियम और हाइड्रोजन इस फॉर्मूले में आपको नज़र आ रहे होंगे। तो हम यहाँ पर भी पहले मेटल की बात करते हैं। पोटेशियम एक मेटल है, उस मेटल के लिए हम यहाँ पर 3 लगा देते हैं। ये 3 पूरे फॉर्मूले के ऊपर अप्लाई होगा। बाय राइटिंग दिस 3, our potassium now 3, hydrogen also 3, and because of this 3, आप अगर ऑक्सीजन का नंबर काउंट करें तो 4 ऑक्सीजन ऑलरेडी मौजूद है Na3PO4 में। इस 3 को लगाने के बाद ऑक्सीजन का नंबर इंक्रीज हुआ, 4 + 3 टोटल 7। नाउ यू कैन कंपेयर बोथ द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट साइड। दोनों साइड्स पर हमारे पास 3 सोडियम, 1 फॉस्फोरस, 7 ऑक्सीजन, 3 पोटेशियम और 3 हाइड्रोजन है। सो द इंटायर इक्वेशन इज बैलेंस्ड। Equation number 8, reaction of NH3 with H2SO4 and it produces NH4 bracket close to SO4. NH3 and H2SO4 are the reactants. When they react, they produces ammonium sulfate जिसका सिंबल है NH4, ब्रैकेट के अंदर लिखा जाएगा, ब्रैकेट के बाहर 2SO4. This is on the product side. First we will write their scales. स्केल में आप देख सकते हैं एलिमेंट्स की सीक्वेंस। पहले हमारे पास नाइट्रोजन है, देन हाइड्रोजन, सल्फर एंड ऑक्सीजन। द सेम इज़ द सीक्वेंस ऑन द प्रोडक्ट साइड। स्टार्ट काउंटिंग द एलिमेंट्स फर्स्ट ऑन द रिएक्टेंट साइड। देयर इज़ 1 नाइट्रोजन ऑन द रिएक्टेंट साइड, 3 हाइड्रोजन इन NH3 फार्मूला, प्लस के बाद H2SO4 में 2 हाइड्रोजन है। तो टोटल हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड पर हमारे पास 5 हैं, सल्फर 1 और ऑक्सीजन 4 हैं। प्रोडक्ट साइड पर अगर हम देखें तो ब्रैकेट के बाहर 2 मौजूद है और ये 2 क्योंकि पूरे फॉर्मूले के ऊपर अप्लाई होगा, अंदर मौजूद तमाम एलिमेंट्स इस 2 से मल्टीप्लाई होंगे। नाइट्रोजन इस 2 की वजह से टोटल नंबर 2 हो गए। हाइड्रोजन 4 अंदर मौजूद हैं, बाहर 2 है तो 4 2 8 हो गए। सल्फ़र यहाँ पर 1 है और ऑक्सीजन भी जो है हमारे पास 4 मौजूद हैं। सो इट इज़ क्लियर फ्रॉम द 2 टेबल्स, आप इनको कंपेयर करके देख सकते हैं कि हमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को रिएक्टेंट साइड पर इंक्रीज़ करना है क्योंकि प्रोडक्ट साइड पर 2 नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन का जो नंबर है वो 8 है। अब हम क्या करेंगे, रिएक्टेंट साइड पर ऐसा कोएफिशिएंट लिखेंगे जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के नंबर को इंक्रीज़ कर दे। सो वी आर राइटिंग 2 as a coefficient here. By writing this 2, there are 2 nitrogens now in the reactant side और हाइड्रोजन का अगर हम नंबर देखें तो ये 2 उसके सबस्क्रिप्ट से मल्टीप्लाई होकर उसे 6 कर देता है। लेकिन H2SO4 का हाइड्रोजन भी जब इसमें ऐड होगा तो टोटल हाइड्रोजन हमारे पास रिएक्टेंट साइड पर 8 हो जाएंगे। सल्फ़र ऑलरेडी हमारे पास 1 मौजूद है और ऑक्सीजन भी 4 मौजूद है। नाउ वी कैन कंपेयर द 2 इक्वेशंस। देयर आर 2 नाइट्रोजन ऑन बोथ द साइड, 8 हाइड्रोजन ऑन बोथ द साइड, 1 sulfur and 4 oxygens on both the side, and the entire equation is balanced now. This is how, students, we have done the balancing of equations. Still you have any query regarding the equations और कोई चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आई तो आप अपने WhatsApp ग्रुप के अंदर वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। And today we have finished the unit chemical reactions. Home assignment. Question number 1 is, what is the difference between oxidation and reduction reaction? मैंने आपको रिडॉक्स रिएक्शन समझाया है कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। वो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन का सम अप होता है। तो बेसिक डिफरेंस ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के दरमियान आपको क्या समझ में आया है, आप उसको 2 पॉइंट्स के अंदर भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, बैलेंस द फॉलोइंग रिएक्शंस। मैं आपको कुछ रिएक्शंस आपसे शेयर कर रही हूँ, आपको इनको बैलेंस करना है। बैलेंस करने के लिए क्या चीज़ें फॉलो करनी है, पहले आप गौर से वो सुन लीजिए। सबसे पहले आप रिएक्टेंट्स लिखेंगे, फिर प्रोडक्ट्स लिखेंगे, रिएक्टेंट साइड का टेबल बनाएंगे जिसमें एलिमेंट्स की सीक्वेंस जो होगी वही प्रोडक्ट साइड में सेम फॉलो की जाएगी। वो कोई भी कंपाउंड बनाकर दे रहे हो, एलिमेंट्स ज़ाहिर है सेम है। कैल्शियम अगर फॉर एग्जाम्पल नंबर 1, कैल्शियम रिएक्टिंग विद HCl, इट गिव्स अस CaCl2 plus H2.
अब आप देख सकते हैं कि रिएक्टेंट साइड पर कैल्शियम है तो डेफिनेटली प्रोडक्ट में भी मौजूद है, रिएक्टेंट साइड पर हाइड्रोजन है तो डेफिनेटली वो प्रोडक्ट साइड पर भी है, रिएक्टेंट साइड पर क्लोरीन है तो प्रोडक्ट साइड पर भी क्लोरीन मौजूद है। स्केल दोनों का सेम बनेगा, यानी एलिमेंट्स की सीक्वेंस सेम रहेगी। फिर आप बिफोर बैलेंसिंग कितने एटम्स मौजूद हैं एक एलिमेंट के, ये लिखेंगे। बिल्कुल इसी तरह प्रोडक्ट साइड पर भी लिखेंगे। फिर आप देखेंगे किस एलिमेंट को बैलेंस करने की ज़रूरत है, रिएक्टेंट साइड पर बढ़ाना है या फिर प्रोडक्ट साइड पर उसका नंबर इंक्रीज़ करना है। वो सुइटेबल कोएफिशिएंट लिखकर आप उसको बैलेंस करेंगे। एक चीज़ इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, जो मैं आपको क्लियर कर दूं, आपको मैंने जितनी भी एग्जाम्पल एक्सप्लेन की हैं उनमें मैंने कोएफिशिएंट्स मेंशन करके उनका नाम बार बार लिखा था। आपको कोएफिशिएंट का नाम लिखने की अब ज़रूरत नहीं है, आप जस्ट वो नंबर लिखेंगे जो एज द कोएफिशिएंट यूज़ हो रहा है। मेरा बार बार कोएफिशिएंट लिखने का मकसद ये था कि आपको पता चले कि कोएफिशिएंट किसे कहते हैं और उसकी पोजीशन क्या होती है। एग्जाम्पल नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 2 जो आपको बैलेंस करनी है, P प्लस Cl2। P का मतलब फॉस्फोरस क्लोरीन से रिएक्ट कर रहा है और हमें दे रहा है PCl3। थर्ड इक्वेशन है N2 नाइट्रोजन प्लस O2 और ये हमें दे रहा है N2O5। N2O5 एक पूरा फॉर्मूला है, आपको याद है ना। क्या आपको कोएफिशिएंट आप कहाँ नहीं लिख सकते, कोएफिशिएंट कभी भी फॉर्मूले के दरमियान में नहीं लिखा जाता, उसकी एक एग्जैक्ट पोजीशन है बिफोर द सिंबल एंड बिफोर द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। आप प्रीवियस स्लाइड्स को बार बार देखकर बड़े आराम से ये काम कर सकते हैं। इक्वेशन नंबर 4 इज एल्युमिनियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन, Al plus O2 gives us Al2O3 which is called as aluminum oxide. Equation number 5 is sodium Na reacting with water H2O produces NaOH and hydrogen gas plus H2. Na plus H2O gives us NaOH plus H2. आप इन इक्वेशंस को अपनी कॉपी में सॉल्व करेंगे। इससे मुतालिक आपको कोई भी क्वेश्चन करना होगा, कोई भी प्रॉब्लम आपको इन्हें सॉल्व करने में पेश आएगी तो आप उसको बड़े आराम से मुझसे, अपने रिस्पेक्टिव टीचर्स से, अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर पूछ सकते हैं। This is how today our lesson chemical reactions is over. Lessons review. In today's lesson we have discussed the redox reactions जिनमें oxidation, reduction हमने देखा, balancing of chemical equations की हमने practice की कोशिश की। I hope students कि आपके बहुत सारे concepts clear हुए होंगे और अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो I am repeatedly saying that you can ask in your relevant WhatsApp group. Thank you students. Till the next lecture. See you. Allah Hafiz.